welcome you all for the class. Okay, as we have seen in the video and in the previous lesson, we have discussed about the introduction of linear equation with one variable. Okay, in the video, I have also discussed with you the different ways of expressing it. That is, if the equation is not in the linear form, how to write it in the linear form, right? And plotting on the graph paper, and how the coordinate geometry and these equation algebraic way are related to each other, that we have seen in the video. Now today here we are going to talk about the what I can say the reverse way. There you see that the points were satisfying the equation, and you know that the points which are satisfying the equation, we call them as solution to the equation, or the points lie on the graph, we call them solution to the equation. And such solutions, how many such solutions are there? Infinite solutions are possible for any equation, right? Also there we learned about, once you are given with an equation, how to find the values, that is plotting, that is the values of x and y, how to find it out, that also we learned here. So today we are going to learn exactly opposite of it. You are given with the values, you have to form the equation. So here today you're going to interact it, so mind it that you pay attention to the class and quickly answer me. Okay, so I'm giving you few values here, you have to tell me the equation for it. And please remember, the same value could represent different equation. Why? Because you know that. Okay, so I don't want a simple form of equation, I want a variety of equation. अब आप जैसे बताएं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आया हो, यदि यदि आपने मुझे सुना हो तो, जैसे हमने देखा कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, डू यू एग्री विद मी? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं एक इक्वेशन आपको दूं तो आप अलग अलग कितने सारे सॉल्यूशन मुझे बता सकते हैं, राइट? अब मैंने आपको उल्टा करने को कह रही हूँ, मैं आपको एक पॉइंट दूंगी, फाइन, और आपको इक्वेशन बनाना है जो उसको सेटिस्फाई करता हो। तो आप बताएंगे कि एक पॉइंट के लिए आप कितने इक्वेशन बना पाएंगे, राइट? फॉर वन पॉइंट how many equations? Could you tell me? I'm writing it on the board so that you get time to think. For one point, how many equations are possible? Suppose, चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, 2,4। इस इक्वेशन के लिए आप, इस पॉइंट के लिए आप मुझे कितने इक्वेशंस दे सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ एनी इक्वेशन व्हिच satisfy this, मतलब रिवर्स में, ठीक है? और आई कैन से, can you find out any equation by which this values, if we put this values in it, you can get the equation satisfied? या तो ऐसा equation जो इस value के substitution पे satisfy हो सकता है. Okay, some are writing infinite. क्यों infinite होंगे? Are you getting it? Most of the children, please get connected with me. Welcome you all to the class again. Pay attention here. Yes, मुझे पता था सबसे easy वाला आपके पास वही होता था. आपको पता है 2 plus 4 is equal to 6. तो इसको आप generalize करोगे. You take it as x and other variable as y. You get x plus y is equal to 6. May I say 2 into 2 is equal to 4. Okay, तो मैं x को 2 ले लेती हूँ. Okay, और y को I mean 4 is my y. तो अब मुझे बताइए इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? 2x is equal to y, यानी कि 2x minus y is equal to 0. Isn't it the equation? Are you getting it? अब कोई other than this, इन दो इक्वेशन के अलावा कोई तीसरा इक्वेशन सोच सकते हो आप लोग? Come on, it's all thinking time. Yes, 2x minus, आप देखिए I have already written 2x minus y is equal to 0. कोई थर्ड इक्वेशन, कोई डिफरेंट इक्वेशन सोच सकते हो? Come on. Yes, come on, you can think of it. It's very easy. कोई रिलेशनशिप लीजिए और उसमें सब्स्टिट्यूट करिए और आपको आंसर क्या मिलता है वो देखिए, एंड उसको फिर x और y में लिख दीजिए, राइट?
टू और फोर को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप रिलेट कर सकते हो. If I take it as 4 minus 2, so how do you write this as y minus x is equal to 2, isn't it? Y minus x is equal to 2. No, I'm really sorry, Samriti, please stop. First of all, you will not take but divide, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या कहता है, ax plus by plus c is equal to 0. You will not go for multiplication and division. Please remember this. Okay, I think somebody has written 2x minus 2y is equal to minus 4. Correct? Because 2x, if you multiply them and subtract it, again you get the answer minus 4. True? Okay, दूसरी चीज. Okay, just pay attention here. X plus y is equal to 6. Can I write 2 times, so 2x plus 2y is equal to 12. अब इस हिसाब से आप कितने इक्वेशन मुझे दे सकते हो? Somebody again making mistake. I have told you, you are not supposed to go with मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. आपका जनरल फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0. तो आपका प्लस माइनस में रिलेशन होना चाहिए x और y का, and both x and y has to be present. When you say somebody has written, okay, here Aditya 3x plus 0y is equal to 6. No, where is y? Y has value 4, so you have to use y. You can't delete y here. That's wrong. Aditya, correct yourself. तो आप ये देखिए, पहले तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, चलिए ठीक है, स्टॉप इट फॉर अ मिनट. ओके, थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दीजिए और पे अटेंशन. ओके, लेट्स योर ईयर बी विद मी. जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था x plus y is equal to 6, इसको हम कोई भी मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं. से 2x plus 2y is equal to 12. यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x plus 3y is equal to 18. सपोज आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10x plus 10y is equal to 60. तो आपकी एक ही इक्वेशन, तो फिर तो न्यू, इस एक इक्वेशन को आप कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, और ये सब में आप और x और y के ढूंढोगे वैल्यू, तो 2 4 तो हमेशा आएगा ही आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पॉइंट के लिए भी इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं. क्यों? याद आया ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट. हाउ मेनी लाइंस विल पास थ्रू अ पॉइंट? इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. और इसी के लिए सारे एक ही पॉइंट पे कितने सारी लाइंस जा सकते हैं? इनफाइनाइट. तो नेचुरली जब इनफाइनाइट लाइंस होगी तो इनफाइनाइट इक्वेशंस भी होंगे. यस, आदित्य हैज गिवन, लेट्स राइट दैट. चलो, थोड़ा सा कुछ मुझे अलग मिला. ओके, लेट मी चेक इट. 10x minus 3y is equal to 8. Let's see. 10 into 2, 20, minus 3 into 4, 12, 20 minus 12, 8. Very true, Aditya. Good. So this way, 10x minus 3y is equal to 8. So we got different equation. So right. So अब यहाँ पे आपका नया प्रोसेस क्या है? So I hope you got with this example that we have to form the equation. So that is also easy. If you are given some point, you can form the equation for it also. Fine. अब थोड़ा सा हम ग्राफ पे फोकस करते हैं, ठीक है? आई एम नॉट एग्जैक्टली ड्रॉइंग द ग्राफ, बट जो टिपिकल टाइप के आपके जो जनरल फॉर्म है, उससे कैसे आपके ग्राफ आएंगे वो आपको एक दिमाग में सेट कर लेना है. प्लीज नाउ स्टॉप विद दिस. ये समझिए, यू आर राइट. व्हाट आई रोट यू हैव रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्म, अदरवाइज इट्स सेम. ओके, अब जो आपका इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0. Please pay attention here, everyone. Stop thinking now for the previous question. Now pay attention here. मैं आपको एक जनरलाइज वे बताती हूँ कि आपका ग्राफ कैसे टाइप का आएगा ऑन द ग्राफ. फाइन. एक चीज जो आपको सबको पता है, शायद मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया है, कि आपका ग्राफ क्या होना है? स्ट्रेट लाइन. राइट. आपको सबको बाहर हो गया होगा इतनी बार मेरे वीडियोस में सुन के. ठीक है, मैं जब जैसे काउंट करने बैठा तो आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स इट गोस, इजंट इट? बहुत बार बोल दिया, बट यही है कि आप लोग याद रखो. प्लीज प्लीज प्लीज, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ पेपर पे कैसे आ सकती है वो देखते हैं. ठीक है, तो मैं आपको जनरलाइज बता देती हूँ, फिर जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये पॉइंट नोटिस करने की, क्या सच में मैम ने जो बताया था वो फॉलो हो रहा है, वो आप लोग देखोगे. ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म आता है ax plus y plus c is equal to 3. तो जब इस टाइप का आपका इक्वेशन है जिसमें आपका a b और
सी, मतलब ये सारे हैं, ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है और सी भी जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब समथिंग लाइक ऐसे ही कोई एग्जांपल ले रही हूँ, फिर 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सपोज आपका कोई ऐसे टाइप का इक्वेशन है, फाइन। दूसरा आपका इक्वेशन है जहाँ पे ए, ओके, आपके ए बी सी मतलब कोई एक एक जीरो होता जाएगा, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, वो हम देख रहे हैं। तो सपोज इस टाइप का ग्राफ है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, जहाँ ए बी सी सारे रियल नंबर्स है, नॉन जीरो है। तो आपका इक्वेशन हमेशा ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है। तो आपका इक्वेशन मतलब आप जब ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे तो कैसे हो सकता है, इट विल बी अ लाइन, ओके, cutting any of the axis. It could be like this, okay. It could be, it could be, it could be like this, okay. It could be like this, कहीं पे भी हो सकती है। तो इस टाइप का जब इक्वेशन होगा जिसमें सी नॉन जीरो है, मतलब आपका ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, मतलब कहीं पे भी ए बी सी में से कुछ भी जीरो नहीं है, तब आप जब लाइन उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ यानी कि वो लाइन दोनों एक्स और वाई एक्सेस को कट करेगी। समझ में आ रहा है? आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ऑब्वियसली लाइन ही होगी, और वो लाइन आपके एक्स और वाई एक्सिस दोनों को हमेशा ही कट करेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कहीं पे भी नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड किसी भी तरह से हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, Aditi, please stop disturbing. मुझे अब आपकी डाउट बाद में चाहिए, अभी मुझे। Okay, so this is what you have to remember it. Whenever it is zero, we have to pay attention. Now, let's go with the other case. We have the first case. Then I will go with my c as zero. Okay, constant जो है वो zero है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? ओके, तो अब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। तो ये किस टाइप का हुआ, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे मेरा 7 की जगह पे 0 है, तो ये इस टाइप का हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस 3y। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3y बाई 2, या मैं कहूँ x इज इक्वल टू 2y, या मैं कहूँ 5x इज इक्वल टू y, या मैं कहूँ x इज इक्वल टू 2y। कितने सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें आपने देखा जब आपका c 0 है तो आपको रिलेशनशिप क्या मिल रही है, x और y में कुछ रिलेशनशिप मिल रही है मल्टीपल्स में। फाइन, आई होप यू क्लियर विद दिस। जब c 0 है और जब इस लाइन का आप ग्राफ बनाओगे, क्यों वो पहले मैं बता देती हूँ फिर मैं ग्राफ बताती हूँ। तो इस केस में मतलब आप ये रिप्रेजेंटेशन सारे देखेंगे, ये सारे में, तो सपोज मैं यहाँ x 0 रख रही हूँ तो y क्या है। ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए। सपोज यहाँ x मैंने 0 रखा तो आपका y क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने x 0 रखा तो y क्या आ रहा है, और यहाँ पे भी मैंने x 0 रखा तो y क्या आ रहा है। और if I put y as 0, what would be the x? Are you getting my point? क्या होगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तब तक मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपका c 0 होगा तो क्या होगा, आपका ग्राफ यानी कि जो लाइन होगा वो हमेशा ओरिजिन में से पास होगी। समझ में आ रहा है? ओरिजिन में से पास होगी, क्यों? क्योंकि जब हम एक 0 रख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 करें तो आपका y 0 आ रहा है, डजंट इट? या तो y 0 रखोगे तो x आएगा, बिकॉज दे आर इन मल्टीपल ऑफ समथिंग रिलेशनशिप। और इसीलिए हमेशा इस टाइप के इक्वेशन में जब c 0 है, वैसा कोई आपको इक्वेशन मिल रहा है तो हमेशा वो ओरिजिन में से पास होगा। क्यों? क्योंकि 0 0 विल बी satisfying that equation। समझ में आ रहा है सबको? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, मतलब अगेन अब जो मैं बता रही हूँ वो इस तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस वो ओरिजिन से पास होगा, ये मेरा आपको कहना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स गो विद द थर्ड पार्ट। ओके, देन a 0। अब जब a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, dy प्लस
c इज इक्वल टू 0, यानी कि dy इज इक्वल टू माइनस सी, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन डी। आपका इक्वेशन सिर्फ y में है। समझ में आया? ओके, तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे देखा, सेकंड है कंडीशन, यहाँ पे सारे नॉन जीरो। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। अभी तो आपको लिखना नहीं है, चलिए ये सारे नॉन जीरो है, सेकंड में सी जीरो है, थर्ड में ए जीरो है, सिर्फ ए जीरो, बी एंड सी आर नॉन जीरो। फाइन, तो ये इस तरीके से होगा। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, लेट्स सी इट। आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा नहीं हो गया, y is equal to 2, y is equal to 3, y is equal to 7 upon 2, कुछ ऐसा हो गया। तो आपको मैम ये तो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है ही नहीं, राइट? बट हमें तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल ही करना है। सो आई कुड राइट दिस इक्वेशन एज 0 into x प्लस, ओके, y, सपोज मैं ये लिखूं तो इसका इक्वेशन तो ये हुआ फर्स्ट वन, 0x plus y minus 2 is equal to 0. Ultimately, this is y is equal to 2 only. ठीक है, तो मैंने आपको प्लॉट करना तो बता दिया। इस टाइप के स्पेशल एग्जांपल्स का क्या, ये मैंने बाकी रखा था, तो ये आज हम देखते हैं कि कैसे करना है। सो प्लीज पे अटेंशन, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट प्लीज याद रखना जरूरी है। यू कांट बी केयरलेस इन दिस वर्क। ओके, तो y is equal to 2। अब मैं आपको कह रही हूँ कि चलिए मुझे वैल्यूज बताइए x और y की। तो अगेन शायद आपके मन में कंफ्यूजन है कि मैम इक्वेशन में कहीं है ही नहीं x, तो हम क्या बताएं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, y की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हमेशा 2 है। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा 2 है, और यहाँ पे 0 क्या है, तो a 0 है, तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0। तो हमें पता ही है 0 है, पर यहाँ पे मैं x की जगह पे कुछ भी ले सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, when इस टाइप का क्वेश्चन आता है y is equal to 2 या y is equal to some multiple, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x could be any real number, मतलब आप x कुछ भी ले लो, y की वैल्यू हमेशा क्या आनी है, 2 आनी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो प्लीज याद रखिएगा। तो इस टाइप का आपका ये पॉइंट, जो पॉइंट बना रहे हो वो भी कैसे होगा, आई कैन टेक एनीथिंग, से x is minus 3, x is 0, say x is 1, anything, any real number. Yes, that's clear. I hope ये समझ में आया हो। और हमेशा अब इसका ग्राफ कैसे होगा, सबको ये समझ में आ गया? जब भी आपका इक्वेशन y में है, तो वो जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, y की वैल्यू, और x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी, फाइन। और इसका ग्राफ कैसे होगा वो देखिए। ओके, इसका ग्राफ होगा, सॉरी, 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ओके, y is equal to 2 कहाँ पे है? यस, y is equal to 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, isn't it? तो हमेशा इसका ग्राफ देखिए क्या है, 2, मतलब y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। इन शॉर्ट, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि y is equal to 2 का ग्राफ हमें कैसे मिला, a straight line parallel to, it is parallel to which axis, it is parallel to x axis. I hope I'm very very clear to you. Yes everyone, so it is parallel to x axis। और अब जो लास्ट वाला है तो थोड़ा सा इससे सिमिलर है। ओके, इसको रब नहीं करती हूँ तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। दो फोर्थ केसेस मैं यही पे ले रही हूँ, फोर्थ केस। ओके, व्हेन b इज 0, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रहा है, व्हेन b इज 0, तो आपका इक्वेशन बन रहा है ax plus c, x is equal to minus c by a। तो सेम वे यहाँ पे कौन सी वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स है। सपोज आई टेक x minus 3 is equal to 0, से x minus 1 is equal to 0, थोड़ा सा इजी लाइन ड्रॉ कर लें, x minus 1 is equal to 0, यानी कि x is equal to 1,
तो यहाँ पे सपोज मुझे वैल्यूज जाननी है, तो x और y की मैं क्या वैल्यू जाननी है, तो x हमेशा 1, अब y की कोई भी वैल्यू हो, x हमेशा 1 होगा, इट कुड बी -1, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, एनीथिंग, और वो हमेशा कैसे जाएगा, 1 से पास होगा। x इज 1, y कुड बी एनीथिंग मूविंग, तो ये किसको पैरेलल आ रहा है, यस इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Yes, dear, it's clear to all of you. It is always parallel to y-axis. I hope this is clear to all of you. Yes, children. So हमने 4 केसेस देखे। फर्स्ट जिसमें ए बी सी सारे नॉन जीरो है, तो कहीं पे भी x और y एक्सिस दोनों को कट करती हुई लाइन होगी। सेकेंड में जब c जीरो है तो ओरिजिन से पास होगी हमेशा लाइन, और जब b जीरो है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब इक्वेशन आपका एक्स में है तो ऐसे याद रख लेना इसको इजीली, जब आपका इक्वेशन एक्स में है तो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आपका इक्वेशन वाई में है तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हायर क्लासेस ऑल्सो, एंड डेफिनेटली इस ईयर के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। ओके, सो अब एक चीज और मुझे बतानी है, तो बिफोर हाँ दी एंड ऑफ द क्लास ये चीजें करनी है। अब हमने सब लाइन जो नई नई ड्रॉ करते हैं उनके सबके इक्वेशंस तो हमें पता चल रहा है, बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस भी तो इतने सारे पॉइंट है, उसी तरीके से वाई इक्वेशन पे भी इतने सारे पॉइंट है। तो यदि कोई आपको ये पूछे कि ओके व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन अल्टीमेटली होता क्या है, ओके, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सम जनरलाइज प्रॉपर्टी। तो आपको क्या पता है जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सपोज ये वाला पॉइंट है 2 है, ये क्या है पॉइंट 2,0, ये पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे 1,0, ये पॉइंट क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या है -1,0, ये पॉइंट क्या है -2,0। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बन जाता है y इक्वल टू 0। समझ में आया? और उसी तरीके से यदि कोई आपको पूछे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, कुड यू आंसर ऑल ऑफ यू? यस, यस, वो उल्टा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। समझ में आ रहा है? What is the equation of x-axis? What is the equation of y-axis? And those 4 cases. So I hope this is clear to all of you. देखिए ये सारा आप अभी जाके सोचोगे कि मैम ने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, I'll go to the textbook and practice. You won't find anything in your textbook. Please, I know it's shocking, but you won't get anything in it because ये सारा जो है जो अभी हमने डिस्कस किया है, ओके, डेफिनेटली जो 4 कंडीशन है वो तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी है जब आपको ग्राफ के लिए याद रखना है। ओके, लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा आंसर किस तरीके से आने वाला है, मतलब मेरा ग्राफ लाइन कैसे ड्रॉ होगी। और ये जो है ये एमसीक्यूज में, क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, so some questions will be there, I'll putting it up on the group, तो प्लीज ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि इस तरीके से कौन सा आपके ग्राफ आ रहा है, कुछ नई सिचुएशन आ भी रही है कि नहीं। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया होगा टॉपिक। और नेक्स्ट सेशन जो आपका है वो वर्ड प्रॉब्लम्स का है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ओके, एंड आई टोल्ड यू फॉर दिस चैप्टर दैट यू गेट आउटसाइड क्वेश्चन आल्सो। ओके, so we will be practicing on that. Okay, fine, so we wind up the class here and I hope you understood. Those who are watching the video later and now also please put, fill the attendance without fail. आप लोग भूल जाते हो और फिर मैं सोच के टेंशन लेती हूँ कि बच्चे अटेंड क्यों नहीं कर रहे, and please ask your friends also to attend it, please, please, please. Thank you. I'm sending the link here also as well as in the group. Thank you children, bye.